नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर परियोजनाओं की सौगात मिली है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये सौगात दी है, जिसमें कि विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। सीधे लिए चलते हैं। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्यना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेन्द्रभाई पटेल, गुजरात राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान जगदीश विश्वकर्माजी, गुजरातना आरोग्य मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई, मारा साथी सांसद नरहरी भाई, दिनेश भाई, हसमुख भाई, धारासभ्यश्रीओ श्री जितेन्द्र भाई, अमित भाई शाह, प्रतिभाबेन जैन मेयर, संगठनना प्रभारी रजनी भाई, श्री जतीन भाई, श्री थेन्नारसन, श्री देवांग दाणी, गौरांग प्रजापति, मंच पर उपस्थित सौ शहरना धारासभ्यश्रीओ અને આજના કાર્યક્રમમાં વેજલપુર વિધાનસભા અને સરખેજ વોર્ડમાંથી આવેલા સૌ પ્યારા ભાઈઓ બહેનોને મારા રામ રામ નમસ્કાર। સૌથી પહેલા હું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ગુજરાત સરકાર બંનેનો હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનવા માંગુ છું કે આજ અમદાવાદ શહેરમાં 1000 કરોડના કામો પૂરા કરી જનતા માટે ખુલ્લા મૂક્યા છે। આ 1000 કરોડના કામોમાં 730 કરોડના કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં અને બાકીના કામો બીજી 2 લોકસભામાં કર્યા છે। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો, એક પણ વર્ષ એવું નથી જેમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગર મતક્ષેત્રમાં વર્ષના 5000 કરોડના વિકાસના કામો ના કર્યા અને એના પરિણામે સમગ્ર દેશમાં અમદાવાદ શહેર અને ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્ર એ વિકાસના નયા રેકોર્ડો તોડી રહ્યું છે। મિત્રો, આજે ખૂબ લોક ઉપયોગી કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં 21 પરિયોજનાઓ ના લોકાર્પણ, 4 ના ખાતમુહૂર્ત અને બાકીની 2 લોકસભામાં 18 પરિયોજનાના લોકાર્પણ અને 2 ના ખાતમુહૂર્ત કરવાનું કામ આજે અહીંયા પર થયું છે। अनेक प्रकारना कामों स्वच्छता ने जोड़ता, लोकोना आरोग्य ने जोड़ता, बाळको ने रमत गमतनी अंदर एक खूब सारू प्लेटफॉर्म आपवावाळा केटल्याय संस्थानो अने पर्यावरणनी जाळवणी माटे ऑक्सिजन पार्क एना लोकार्पणना कामो थया छे। संचालिका बहने पहला बधानी विस्तृत बात तमारी साथे करी छे, एमां हूँ नथी पड़तो, परंतु आजे हूँ अमदावाद शहरना नागरिकोने एक विनंती करवा आव्यो छुं। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशने 100 दिवसमां 30 लाख वृक्ष आपणी आवनारी पेढ़ी माटे वावવાનો संकल्प कर्यो छे અને આ અભિયાન સાથે હું ખૂબ નજીકથી જોડાયેલો છું। દરેક સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરી, દરેક ગામના સરપંચ, દરેક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અને ધારાસભ્યોને તો પત્રોની સાથે અનેક ફોનો પણ મેં કર્યા છે। ખૂબ સુંદર અભિયાન થયું। 30 લાખ વૃક્ષો म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ने सरकारी संस्थाओं वावे ये खूब मोटी बात है, परंतु
હું અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોને કહેવા માંગુ છું, એમાં આપણું યોગદાન શું? આપણે આપણા પરિવારના સદસ્યો જેટલા વૃક્ષો આપણી સોસાયટીમાં, આપણી નજીકની પડતર જમીનમાં, આપણા બાળકની સ્કૂલમાં ક્યાંય ને ક્યાંય વાવી શકીએ. આપણે જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરતા હોઈએ, ચાહે વાહનથી, ચાહે શરીરથી, ચાહે એસી ચલાવી, ચાહે લાઇટ વાપરીને, એ બધો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણા જીવનમાં એની બાદબાકી કરી ઓક્સિજન વધારવાનું કામ દરેક નાગરિકે પોતાના જીવનનો લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. મિત્રો, લાખો કરોડો વૃક્ષોનું નિકંદન, શહેરો વધ્યા, રોડ બન્યા, પાવર સ્ટેશનો બન્યા, બ્રિજ બન્યા, અને પછી અંતે અવકાશની અંદર ઓઝોનના પડની અંદર ગાબડું પડવા માંડ્યું. રોજ બરોજ ગરમી વધી, અચાનક વરસાદ, અચાનક દુકાળ, જલવાયુ પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ, એ બંને આજે પૃથ્વી અને માનવના અસ્તિત્વ માટે ગંભીર ખતરા છે. આપણા દેશના વડાપ્રધાન ને આપણા જ ગુજરાતના જ પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈએ એક આહવાન દેશની જનતાનું કર્યું છે. એક પેડ માં કે નામ. પોતાની માં જો જીવિત હોય તો એને સાથે રાખી એક વૃક્ષારોપણ કરવું, અને દિવંગત હોય તો એનો ફોટો સાથે રાખી એક વૃક્ષારોપણ કરવું. માતૃ ઋણથી મુક્ત થવાનો આનાથી મોટો કોઈ બીજો વિકલ્પ ના હોય, આનાથી મોટો બીજો કોઈ રસ્તો ના હોય. હું આજે ભલે ઓગસ્ટ મહિનો પતવા આવ્યો, છતાંય અમદાવાદ શહેરના દરેક નાગરિકોને હું હૃદયપૂર્વક અપીલ કરવા માંગુ છું કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કેટલાય ઓક્સિજન પાર્ક બનાવે, કેટલાય મિયાવાકી જંગલો બનાવે, કેટલાય વૃક્ષો વાવે. એ બધા એનો સરવાળો જો દરેક અમદાવાદી એક વૃક્ષ વાવે તો એના કરતા ડબલ થઈ જાય. આપણે સૌએ આપણી જવાબદારી સમજી એક રોપો વાવવાનું કામ જરૂર કરવું જોઈએ. આપણા માથાથી મોટો થાય ત્યાં સુધી એક બાળકની જેમ એની કાળજી પણ લેવી જોઈએ અને એ કામને આગળ પણ વધારવું જોઈએ. મિત્રો, સમગ્ર દેશમાં અનેક શહેરોએ અમદાવાદની જેમ સંકલ્પ લીધા. 50 લાખ વૃક્ષ, 30 લાખ વૃક્ષ, 60 લાખ વૃક્ષ, અને જોતામાં એક પેડ માં કે નામ એ નારો ના રહેતા એક જન અભિયાનની અંદર પરિવર્તિત થયું છે. અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોને હું અપીલ કરું છું, આપણે પણ આની સાથે જોડાઈએ. ભાઈઓ બહેનો, નરેન્દ્રભાઈ અનેક વર્ષો સુધી અહીંયા મુખ્યમંત્રી રહ્યા, દેશે એમને વડાપ્રધાન બનાયા, પરંતુ હમણાં ગત ચૂંટણીમાં 60 વર્ષ પછી દેશમાં કોઈ એક વ્યક્તિને દેશની જનતાએ ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવવાનું કામ કર્યું એ નરેન્દ્રભાઈ. અને એમાં અમદાવાદની 3 સીટો, મારા સાથી સંસદ સભ્યો અહીંયા બેઠા છે, 3 સીટો નરેન્દ્રભાઈની જોડીમાં નાખી. ગુજરાતે 25 સીટો નાખી. અને હું તો લોકસભાના સભ્ય તરીકે તમને બધાને પ્રણામ અને ધન્યવાદ કહેવા આવ્યો છું. ખૂબ મોટી લીડથી મને ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે તમે જીતાડ્યો. આજે હું અને મારા સાથી કાર્યકર્તાઓ જે મંચ પર બેઠા છે, એ સૌ અમદાવાદ શહેરના સૌ નગરજનોને, સૌના વતી હું વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું કે અમદાવાદનો વિકાસ, ભવિષ્યને અનુકૂળ વિકાસ અને વિકસિત અમદાવાદ, સંપૂર્ણ વિકસિત શહેર, ઝૂંપડપટ્ટી વગરનું શહેર, ધુમાડા વગરનું શહેર,
અને દરેક ઘરમાં શૌચાલય વાળું શહેર, દરેકની પાસે આરોગ્યના કાર્ડ વાળું શહેર આવનારા 2 વર્ષની અંદર જ અમે બનાવવાનો સંકલ્પ પૂરો કરીશું અને અમદાવાદને સમગ્ર દેશના શહેરોને અગ્રીમ હરોળમાં લાવવાનું કામ કરીશું. ભાઈઓ બહેનો, આજે અહીં નજીકમાં જ એક ખૂબ સુંદર સ્વિમિંગ પુલ, ઉપર જિમ્નેશિયમ અને યોગ અને આસનોના શીખવાડવાની વ્યવસ્થા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કરી. પહેલા હું ગામડામાં રહેતો હતો ત્યારે ગામડામાં છોકરીના આશીર્વાદ આપતા કે સ્વિમિંગ પુલ વાળા ઘર હોય એવું સાસરું તને મળે. પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને બધી દીકરીઓને સ્વિમિંગ પુલ વાળી કરી નાખી, કોઈ ચિંતા જ ના કરતા હોય. શહેરમાં અનેક સ્વિમિંગ પુલ બનાયા અને હું આજે જોઈને આવ્યો, નાના નાના બાળકો અને યુવાનો, દિવ્યાંગ યુવાનો પણ ફૂલ લેન્થ 5 લેન્થ મારી ત્યાં સુધી હું ઉભો રહ્યો, 5 લેન્થ મારી એમને આજે એ સ્વિમિંગ પુલનું ઉદઘાટન કર્યું છે. મિત્રો, ખૂબ મોટી વાત છે. પોતાનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવાની જાગૃતતા હોય, ઈચ્છા પણ હોય, આળસ પણ ના હોય, પણ વ્યવસ્થા ના હોય તો શું થાય? તમારે જિમ્નેશિયમ કરવું હોય તો સાર્વજનિક રૂપે નિઃશુલ્ક છે. બહુ નોમિનલ ફીમાં અહીંયા પર સ્વિમિંગની વ્યવસ્થા છે અને યોગ આસન એની પણ વ્યવસ્થા નિઃશુલ્ક કરવામાં આવી છે. જે તળાવ બનાયા, જે ઓક્સિજન પાર્ક બનાયા, એ બંનેમાં 450 મીટરની લેન્થના વોકિંગ रोड પણ બનાયા છે અને ખૂબ સુંદર वॉकिंग रोड बनाया है. तो आप सुन रहे थे अमित शाह को, जो कि अहमदाबाद में तमाम सारी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और अहमदाबाद वासियों को जो है सौगात दी है. कहीं न कहीं अगली खबर का रुख करते हैं, अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर बृहद रोजगार मेला एवं युवा सम्मेलन देखने को मिला है, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ है, युवाओं को वितरित किया गया, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र, साथ ही इसमें इस कार्यक्रम में सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए. टाटा मोटर्स में इनकी नियुक्ति हुई है, जिसका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी सौंप रहे हैं इन्हें. आदित्य कुमार, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. स्वाति कुमारी भोजवाल, हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. श्वेतांश मिश्रा, टाटा मोटर्स. ज्ञानदीप, बजाज ऑटो. अरविंद, बजाज ऑटो. दिव्यांशी पांडे, चैम्बर ऑफ MSME. सलोनी चौरसिया, एल्कॉन वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड. अमृता वर्मा, एल्कॉन वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड. अंतिमा वर्मा, चैम्बर ऑफ MSME. अनूप, हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. और अंशु यादव, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. और हमारे दर्शक दीर्घा में जिन छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन और टैबलेट फोन है, आप अपने हाथ उठाकर उन्हें दिखाएंगे. बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए उत्तर प्रदेश अर्थात विकास, रोजगार, युवा कल्याण, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुशासन, परिवार कल्याण और निवेश की गारंटी, जिसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच और निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली को.
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश का विकास तो हुआ ही है, लोक कल्याण के साथ जनमानस की आस्था और विश्वास को भी सम्मान मिला है। बिना किसी विभेद के आम जनमानस की सुरक्षा और समृद्धि को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रभु श्री रामलला के पावन धरा अयोध्या धाम के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इस रोजगार मेला और प्रदेश के युवाओं के साथ ही जनपद अयोध्या के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस बृहद समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग श्री एम देवराज जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रदेश के मेरी युवा शक्ति के प्रतीक नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, आज यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे इस रोजगार मेला और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जिन नौजवान साथियों को अभी नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित हुआ है, उन्हें और जिन्हें इसके साथ ही वितरण होने वाला है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं।
बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है। भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं उसी क्रम में आपके बीच आया हूं। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रख रहा है। नई नई तकनीकी जानकारी अन्नदाता किसानों को दे रहा है, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को जोड़ रहा है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जुड़े हुए हैं। नीचे हो सकता पानी होगा, लेकिन मौसम बाहर बहुत सुहावना है। लेकिन कल तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पसीना फूट रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं देख रहा था कि युवाओं में अपार उत्साह था, अपार उत्साह वहां देखने को मिला। और हजारों नौजवानों को रोजगार के, हजारों नौजवानों को टैबलेट वितरित किए गए, हजारों नौजवानों को ऋण वितरण का कार्यक्रम किया गया। और वहां पर लोगों ने देखा है हमारे युवा ऊर्जा के पास कितनी प्रतिभा है, इन सब कार्यों को देखा गया। और आज मुझे इस कृषि विश्वविद्यालय में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ यहां की तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है।
इन योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की भावी प्रगति को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और विश्वविद्यालय के लिए, यहां के लिए चाहे वह विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, यहां के आंतरिक मार्गों का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी जो सहयोग किया गया है उसका भी लोकार्पण हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफिस फॉर्म के लिए भी यहां पैसा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है सुल्तानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है। और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी और आज सलानिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.